Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, आज है 3rd December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the trading plan for the next trading day, which is on the weekend, 4th December, right? कल है Friday. So we'll also be estimating the kind of, moves possibly Nifty or Bank Nifty may show up tomorrow, right? Well, if you are new to our YouTube channel, friends, do subscribe it. And also don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation. And of course, be generous to share the video with your friends and trading community such that they can also take advantage of quality analysis and knowledge. We have many videos, friends, here for our trading community, which are these videos are technical analysis, data analysis, or how to take entry, exit, a lot of learning in stock market trading and investing. You can use them for enhancing your knowledge. Now let's go to the daily chart of Nifty and Bank Nifty and see what kind of actions Nifty and Bank Nifty had exhibited today, right? So if you look at Nifty, you can see Nifty, in fact, Nifty as well as Bank Nifty both opened gap up with a bullish bias. But as I had said in my yesterday's video, that at these levels, profit booking will start. So you could see that at those levels which I have given you selling zones or resistive levels, the profit booking had started there. Overall market remained bearish almost whole day because profit booking continued. Today's top contributors were Maruti, NTPC, and ONGC, while as the top draggers were SBI Life, SDFC Bank, due to the RBI comment on it and rather instruction on it, and TCS. Nifty closed at 13,133.9. So 13,134 you can say, with a net gain of 20 points. कल 5 पॉइंट का गेन था फ्रेंड्स. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कोई बहुत ज्यादा बड़ा गेन नहीं ले रही है, बट हायर हाई बना के एक नई ऊंचाई को छू के आ जा रही है. सिमिलरली बैंक निफ्टी, नो नॉट सिमिलरली, दिस टाइम द बैंक निफ्टी टुडे consolidated in yesterday's candle and both consolidated within the candlestick of 25th November. Now, if you look at it, friends, if you look at last 1 week commentary, I've been saying that after 25th, the whole week market will consolidate in large candlestick because market ko kyun chahiye hai. International markets had been consolidating and that is what was expected. So इस हफ्ते के ऑलमोस्ट 4 दिन तो निकल गए, अभी 5वां दिन कल है. सो लेट्स सी कि कल कैसे मार्केट होती है, ओपन या क्लोज, एंड विल बी ऑफ कोर्स एस्टिमेटिंग दैट. सो आज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने कोई लॉस बहुत ज्यादा नहीं किया, 14 पॉइंट का लॉस है ओवरऑल एंड इट क्लोज्ड एट 29,499. ओवरऑल मार्केट ब्रेड पॉजिटिव रही, 35 स्टॉक्स एडवांस हुए, 15 डिक्लाइन हुए. हमने कल एस्टिमेट किया था आज के लिए कि 12,900 से 13,250 की रेंज रहेगी निफ्टी के लिए एंड बैंक निफ्टी के लिए 29,000 से 30,000 की रेंज, which you can see from opening and low or rather high or low, that these range along with the estimated resistance and support levels were honored very well. Right? अगर हम ट्रेंड पर्सपेक्टिव से बात करें तो निफ्टी कंटिन्यूज इट्स अप ट्रेंड बिकॉज इट हैज मेड हायर हाई एंड हायर लो, while as बैंक निफ्टी हैज मेड लोअर हाई एंड हायर लो, दैट इज इन कैंडल कंसोलिडेशन. नाउ अगर हम वीकली चार्ट में देखें फ्रेंड्स इसको, तो यू वुड सी देयर इज अ इंडिसाइसिव कैंडल on a weekly chart in Nifty as well as Bank Nifty. In both the charts, it is making kind of spinning top. Spinning top typically एक indecisive candlestick होती है. अगर कल भी आप indecisive candlestick का pattern देखें तो you can understand that market is in no mood to go further up. Also, you would see that there are divergences, negative divergences are in Nifty में as well as Bank Nifty में, which you can see from RSI. So you need to be very, very careful. And of course, be careful in listening to this video because there is lot of information in this video, not only about how to trade Nifty and Bank Nifty on intraday tomorrow, but also how the international markets are behaving and how the data is affecting our market, right? So now let's look at what could be the trading range for tomorrow, right? So downside में friends, support Nifty में है हमारा
पहला सपोर्ट है 13,109 पे, सेकंड सपोर्ट है 13,062 पे, थर्ड सपोर्ट है 13,012 पे, एंड फोर्थ सपोर्ट है 12,985 पे, राइट? So what I would do is I would jot down these numbers for you so that you can take a note of it, right? So downside support 12,985 एंड अप साइड अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पे है? पहला रेजिस्टेंस तो जस्ट जहां आज क्लोज हुआ है उसके थोड़ा ऊपर ही है, 13,160 पे, सेकेंड 13,207, थर्ड 13,250 एंड 13,272 पे एक दूसरा लेवल है, राइट? सो दीज आर द ट्रेडिंग रेंज, रादर प्राइस एक्शन का जो रेंज है वो। नाउ सिमिलरली बैंक निफ्टी को अगर देखें फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में डाउन साइड में 29,388, 29,275, 29,152 एंड 28,927। तो ये डाउन साइड में हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर अपसाइड में देखें, अगर बैंक निफ्टी अपसाइड में जाती है 29,530, 29,622, 29,717, 29,809, 29,879 ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। बट अगर हम इसको ओवरऑल देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में किसी काइंड की बुलिशनेस आती है, क्योंकि आज काफी सेल आउट हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 29,879 एज योर अपर लिमिट, राइट? ऑल्दो हमारा जो ये जो बड़ी कैंडल बनी थी 25th को, उसका हाई है 30,197, बट यहाँ पे बहुत बुलिशनेस नजर नहीं आ रही है बैंक निफ्टी में, सो वी हैव नॉट टेकन दैट एज अ higher range, and you can see from the volumes that volumes of selling are consistently increasing. Now friends, let's focus on the data, right? तो निफ्टी के डेटा से देखते हैं, तो आज जो एक्सपायरी थी, आज थर्सडे था, तो हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि थर्सडे मार्केट वोलेटाइल रहेगी, मार्केट आज वोलेटाइल रही और क्लोज हुई है 13,134 पे। सो 13,150 विल बी आर एट द मनी स्ट्राइक, राइट? तो उसके अराउंड में, इर्द गिर्द में हम देखेंगे कि किस टाइप के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हुए हैं, राइट? सो लेट्स टेक दिस एज अ एटीएम and see what kind of support and resistance levels are created by bulls and bears, right? So let's now अगर आप 13,100 पे देखें तो almost 1.4 million contracts fresh आए हैं, overall 1.7 million contracts, तो that will work as a support. Support 2 हमारा friends emerge हो रहा है 13,000 पे, and support 3 अगर 13,000 टूटा तो in that case काफी नीचे है 12,800 पे। इन बिटवीन काफी फ्रेश राइटिंग ऐसे सच नहीं दिखाई दे रही, तो ऐसा लगता है कि 13,000 को कल के लिए लॉक कर दिया गया, राइट? सो दैट्स फ्रॉम द ऑप्शन चेन डेटा, राइट? सो S3 कुड बी दिस, अगर मार्केट नीचे जाती तो S4 कुड बी 12,800, अगर मार्केट बहुत ज्यादा सेल आउट होता है या प्रॉफिट बुकिंग होती है तो कल। अब अगर कॉल साइड में देखें फ्रेंड्स, तो कॉल साइड में 13,100 पे, जो कि थोड़ा सा आज की क्लोजिंग से नीचे है, देयर इज ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हुई है, राइट? एंड आज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो बियर्स हैं उन्होंने कोई भी अनवाइंडिंग नहीं की है, इसका मतलब आज बियर्स काफी कॉन्फिडेंट हुए हैं, राइट? हालांकि ये नई ऑप्शन चेन सीरीज है, तो इसमें आपको पुट्स में भी कोई अनवाइंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। नाउ 13,100 अगर मार्केट 35 पॉइंट नीचे जाती है तो इन दैट केस दिस विल इमर्ज एज अ रेजिस्टेंस 1, बट अदरवाइज वी कैन से दैट 13,150, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास ओपन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, तो विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट एज अ रेजिस्टेंस, बट हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 13,200 पे, राइट? 13,200 पे यू कैन सी 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आज फ्रेश हुए हैं। 13,250 इज नो मोर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है फ्रेंड्स, वो है 13,300 पे, राइट? सो दैट विल वर्क एज R2। अगर ये लेवल टूटता है तो अगेन R3 विल बी R 13,400, राइट? सो ये हमको ऑप्शन चेन से दिखाई दे रहा है। सो वी कैन से दैट 13,000 on downside and 13,000 on 13,300 could be our upside from
ऑप्शन चेन। नाउ अगर हम इस ऑप्शन चेन का पीसीआर की बात करें फ्रेंड्स, तो आप इस ऑप्शन चेन का पीसीआर जो है आज है 1.07, जो कि हमको एक न्यूट्रल बायस दिखाई देता है, राइट? तो डेटा today is talking a little different than what is price action talking. Price action of course consolidation दिखा रहा है या a little bit bias bullish तरफ दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा कंप्लीटली जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफी ऊपर की तरफ शिफ्ट करके दिखा रहा है, मतलब बुलिश बायस ज्यादा दिखा रहा है, ऑल्दो पीसीआर कम है. सो नाउ why it is important to see the option chain data is we can conclude from what kind of position bulls and bears have made and which direction, which emotions are more predominant, right? So agar domination agar bulls ka hai, so you would see market would go up. अगर बियर्स का है तो मार्केट विल गो डाउन, राइट? सो बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें, आज 1 का है फ्रेंड्स, एंड 29,000 से 30,000 की बैंक निफ्टी की रेंज दिखाई दे रही है. नाउ अगर हम इस डेटा को हमारे प्राइस एक्शन पे देखें तो 12,900 जो कि 13,272 का है. सो ये रेंज मोर और लेस हमको ऑप्शन चेन से क्लियरली दिखाई दे रही है. और सिमिलरली हमको 29,000 से 30,000 या 29,900 का जो एक यहाँ पे रेंज दिखाई दे रहा है, ये बराबर दिखाई दे रहा है. खाली थोड़ा निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा में थोड़ा मिसमैच हो रहा था, राइट? नाउ अगर हम प्रोविजनल डेटा के पर्सपेक्टिव से बात करें फ्रेंड्स, तो आज एफआईआईज ने नेट बाइंग की 3,637 करोड़ की. ये वीक में भी, मतलब दिसंबर सीरीज में भी देवर नेट बायर्स इन ऑल 3 days so far when the market was open, and DIs were of course, I mean as usual नेट सेलर रहे. 1,440 करोड़ का उन्होंने नेट सेलिंग किया है. ओवरऑल इन अगर ऑप्शन में बात करूं, ऑप्शन की सीरीज में एफआई इज माइल्ड बुलिश है एज ऑफ नाउ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड retailers भी mild bullish हैं, while as pros are mildly bearish right now. Let's look at what is happening in the international markets before we conclude on this intraday trading opportunity, right? So let's look at S&P 500 कैसे behave कर रहा है friends. S&P 500 and Dow Jones का future देख लेते हैं. So Dow Jones का future and S&P 500 again sideways है, थोड़ा सा bullish bias दिखा रहा है, but MACD strength दिखा नहीं रहा है, right? Dow Jones में bearish crossover हुआ है and S&P में strength नहीं, although up journey है. कल भी नीचे तक स्विंग किया था, मार्केट वोलेटाइल थी. आज भी मोर और लेस छोटी कैंडल में ही है, बट स्विंग्स दिखा रहा है. लोअर और अपर वीक बड़ी बनी हुई है इसके लिए, राइट? सिमिलरली लेट्स हैव अ लुक एट नैस्डैक सो दैट यू कैन कंक्लूड व्हाट्स हैपनिंग इन अ नैस्डैक. तो आप देखेंगे नैस्डैक अगेन स्टिल इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन जोन, इट इज स्टक अप अनलेस अंटिल, बट नैस्डैक इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे एमएसीडी भी काफी बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है. आरएसआई की तो बुलिश स्ट्रेंथ है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन से बाहर आना चाहिए, राइट? तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है तो यू कैन सी दैट नैस्डैक विल बी in a bullish mode. Now Nasdaq और S&P 500 या Dow Jones का कोरिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है. Nasdaq is a mainly जो टेक कंपनीज है उनका इंडेक्स है, while as S&P 500 is a broader index of US. Now DAX and FTSE, मतलब हम जर्मन एंड यूके के इंडेक्स को देख लेते हैं. सो यूके का इंडेक्स अगर आप देखेंगे FTSE 100 फ्रेंड्स, तो ये बुलिश बायस दिखा रहा है. यहाँ पे लास्ट 2 दिन से यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स, लार्ज ग्रीन कैंडल बने, और जो एक बियरिश बायस बना था वो जो यहाँ पे बियरिश एमएसीडी ने दिखाया था बियरिश क्रॉसओवर, वो भी ऐसे लगता है कि नलिफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा फ्लैग बना है और इट्स अ बुलिश पैटर्न, बट ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में फंसा हुआ है. सिमिलरली डैक्स जर्मनी तो एक अगेन डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में इसने शूटिंग स्टार बनाया. उसके बाद में लगातार ये अगर देखें तो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है. Only good aspect is they all are trading above. In fact, FTSE is trading above 200 days, and DAX is trading above 100 days moving average. So that way, ठीक ठाक है. But again, we can say that overall, अगर मैं European as well as American market को देखूं, तो it is more of in a consolidation phase, right? Now let's look at how our market can be traded tomorrow. Looking at the overall world market is in consolidation with a mild bullish bias and some of the indices are correcting. तो हम हमारे मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? So as my running commentary was clear that we will see in coming time consolidation for a week.
सो कंसोलिडेशन चालू रहेगा जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे चालू होंगी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की जो कंपनीज है मोस्टली दे आर गिविंग राइट नाउ 30-35% ऑफ रिटर्न, सो मेनी ऑफ द कंपनीज आर बुकिंग प्रॉफिट, राइट। स्पेशली अगर आप एफ की बात करें तो एफ का क्योंकि ईयर एंड होने वाला है, सो यू नो ऑन अ बुक्स ऑफ अकाउंट दे हैव टू एग्जिबिट देयर इज अ प्रॉफिट, सो दे मे बी बुकिंग द प्रॉफिट इन ईदर सेकेंड वीक ऑफ डिसंबर और थर्ड वीक बिफोर दे गो फॉर अ लॉन्ग vacation of Christmas. So ये एक आपको भूलना नहीं चाहिए. So maybe tomorrow also again it will be in consolidation, and tomorrow I'll be releasing a video on weekly analysis for the next week for Nifty and Bank Nifty. So you will get a cue about how the market may move next week. But in a smaller time frame अगर हम देखें friends, so we will know what could be the trading plan for tomorrow, right? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये लेवल पे अगर मार्केट ओपन हुए, 13,175 का लेवल था कल हमारा, वो लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है और आपको ओआरसी टूटती है तो यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड. तो आज वैसे ही शॉर्ट ट्रेड हुई, बट एट द सेम टाइम मैंने बोला था आपको कि ये लेवल पे अगर मार्केट आती है तो इन लेवल पे बाइंग आएगी. हालांकि मार्केट ये लेवल के नीचे 13,100 के नीचे गई नहीं. दिस वाज अ मैक्स पेन एरिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इन ऑप्शन चेन, राइट. तो कुल मिला के ऑल्दो रेड कैंडल बनी, मार्केट नीचे आई, बट ओवरऑल जहां कल मार्केट क्लोज थी निफ्टी वहीं की वहीं रही. सो अब आप कैसे ट्रेड करोगे वापस? अगर कल मार्केट 13,207 या 13,250 के आसपास में ओपन होता है, यू विल सी प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर मार्केट 13,100 से 13,160 के रेंज में, डू नॉट ट्रेड इट. 13,000 अगर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है 13,062, तो you would see buying interest. In fact, maybe it will retest 13,000 level and from there you will see bounce back, right? तो ये हमेशा देखें कि अगर लोअर पे आ रहा है तो पॉसिबिलिटी होगी कि यहां से ये बाउंस बैक कर सकता है, राइट, ऐसे. और ये भी हो सकता है कि ये यहां से नीचे आए और ये लेवल को टेस्ट करे और उसके बाद में बाउंस बैक करे. सिमिलरली यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, एंड ये नो ट्रेडिंग जोन है, राइट. अभी अगर हम बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी में काफी प्रॉफिट बुकिंग चालू है. अगर आपने देखा बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक महीने लगातार बुलिश बायस से थी, और रीजन वाज वेरी सिंपल. बैंक्स में जो बियरिशनेस थी और रिकवर नहीं किया था बैंक्स ने, दैट रिकवरी वाज सीन. तो प्रॉफिट बुकिंग आप अक्रॉस द काउंटर हो रही है. आप एचडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, या खाली एसबीआई है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही. बट जो मेजर स्टॉक्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी 12 स्टॉक के, उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही. नाउ अगर मार्केट कल ये जोन में स्टार्ट होती है 29,388 से 29,530 में, सो आई विल से दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, सो अवॉइड टू ट्रेड दिस जोन. और पहले इसमें हाफ एन आवर वेट करें, उसके बाद में आप देखें कि भाई मार्केट किस साइड में ब्रेकआउट ले रही है, राइट. अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है ये लेवल पे, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी. इनफैक्ट ये लेवल पे भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है. अगर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है, लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी आपको यहां से मिलेगी, राइट. बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप मार्केट में हैं और मार्केट सपोज करो 29,388 एंड 29,530 के बीच में स्टार्ट होती है, दैट मीन्स जहां क्लोज हुई मोर और लेस 10, 20, 50 पॉइंट्स अप एंड डाउन, तो फर्स्ट 10 मिनट ओआरसी देखें. ओआरसी जिस भी साइड में ब्रेकआउट ले, उस साइड में आपकी अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी वही ट्रेड दे रही है तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करें. अदरवाइज वेट फॉर अंटिल 945 और 950 सच दैट यू गेट अ क्लियर ट्रेंड. ट्रेंड के साइड में ट्रेड करें, इट विल बी प्रॉफिटेबल टू यू. Of course, and look at the volume, rising volume, right? Rising volume के साथ में ट्रेड करेंगे, it will definitely be beneficial. अगर निफ्टी 12,936 को सस्टेन करेगी तो you will see 13,350 और 13,400 तक भी मार्केट जा सकती है. हालांकि at this point of time there is a weakness in the market, right? And bearish divergences यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बड़ी क्लियरली. मार्केट यहाँ से प्राइस अप गई है, आरएसआई साइडवेज है या नीचे की तरफ आया, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी. सो इस बात का ख्याल रखें. If you are trading, do trade with the stop losses and trailing stop losses. If you are in a profit, do lock your profit by using trailing stop loss. And always look at domestic cues and international cues, because market में जो short term में उथल पुथल होती है वो
इन्हीं कारणों से होती है। इसके ऊपर कंट्रोल अगर कंट्रोल तो आप नहीं कर सकते हो, बट मॉनिटर इनको कर सकते हो। हाउ वुड यू मैन मॉनिटर दैट? ऑप्शन चेन डेटा क्लियरली हर 15-20 मिनट में आपको ये इंडिकेशन देते रहता है कि भाई इमोशंस क्या बिल्ड हो रहे हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो, स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट देखो, इंडिया वीक्स यूएसडी आईएनआर का चार्ट जो कि मार्केट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, उसको भी आप देखना ना भूलें। स्मार्ट मनी फॉलो करें डेफिनेटली, क्योंकि स्मार्ट मनी हैज पावर टू मूव द मार्केट. I hope with this you are able to trade the market well with profitable trades. Thank you very much for watching the video, friends. And to get latest information, do subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you get latest notification. There are many videos here which you can take advantage of in your learning. And if you want any particular video for us to make, we would definitely do that. You can write in a comment box of a particular video which you are seeing, or community tab here, right? Most of the time हम आपके comments को पढ़ते हैं, and we feel glad that the videos are helping you to navigate through the market. At least you are able to make your own view. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading communities so that they can also be benefited from quality knowledge and analysis. Signing off until the next video, friends. Good luck, happy trading, happy investing.